A slender uniform rod of mass capital M and length L is pivoted at one end so that it can rotate in vertical plane as shown in figure. There is negligible friction at the pivot. The free end is held vertically above the pivot and then released. The angular acceleration of the rod when it makes an angle theta with the vertical is option 1 3g by 2l into cos theta, option 2 2g by 3l into cos theta, option 3 3g by 2l sin theta, and option 4 2g by 3l into sin theta. So our rod is rotating about point O and the center of mass is at point C, and let the free end be point D. So length OD is equal to L, which is the length of the rod, and therefore OC, which is the center of mass location, is L by 2, because center of mass is at the center of a uniform rod. So OC is L by 2, and the gravitational force mg will be acting downwards, mg, and because of that there will be a torque about point O, and as a consequence of torque there will be a angular acceleration alpha. Now we know that from Newton's second law, the summation of torques about point O is equal to the moment of inertia of the rod about point O into angular acceleration alpha. Since there is only one force mg acting, there will only be one torque because of this mg force, and the torque will be equal to mg into the perpendicular distance can be found by extending this mg vector and intersecting with the x-axis. Let's call this point x. So the perpendicular distance is equal to OX. This is equal to IO into alpha. Since length OC is equal to L by 2, if you look at this triangle OCX, then this will be angle theta, and OX will be equal to L by 2 into sin theta. Therefore, mg into L by 2 into sin theta will be equal to IO into alpha. Now using the parallel axis theorem, IO will be equal to I about center of mass plus mass of rod into distance of point O from the center of mass, which is L by 2 squared. We also know that I about center of mass for a uniform rod is ml square by 12. Upon calculation, IO becomes equal to ml square by 3 into alpha. On the left hand side we have ngl by 2 into sin theta. M can be divided from both sides and L can also be divided from both sides. So upon rearranging, we get the angular acceleration about point O alpha is equal to 3g by 2l sin theta. Now this is given in option 3, therefore option 3 is the correct answer. तो एक क्वार्टर सेक्टर मैंने कट करा यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क से जिसका रेडियस r है। इस सेक्टर का मास मैंने माना m। इट इज टू बी रोटेट अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। तो ये एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर टू दिस डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क है। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखिए अगर ये पूरी डिस्क होती है मेरे पास, अगर ये पूरी डिस्क है, ठीक है, अब इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। हर एक क्वाड्रेट का मास ले लेते हैं m। तो अब इस पूरी डिस्क का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर से एक एक्सिस जो कि इसके सेंटर से पास हो रही है परपेंडिकुलर टू दिस डिस्क है, तो अगर मैं उसके अबाउट लिखना चाहूँ तो अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया x मानूंगा
तो इसका भी x आएगा, इसका भी x आएगा और इसका भी x आएगा। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्री है। देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन इसका है वही डिस्ट्रीब्यूशन इसका है, वही डिस्ट्रीब्यूशन इसका है और वही डिस्ट्रीब्यूशन इसका है। तो सिमेट्री से मैं कह सकता हूँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक क्वाड्रेट का है वही सारे चारों के चारों क्वाड्रेट्स का है। ठीक है, तो जो मेरे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वो 4x के इक्वल है, और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को पता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्क का 4m इंटू r²/2 के। यानी कि जो x आया वो मेरा किसके इक्वल आया, एक क्वार्टर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसके इक्वल आ गया, m r²/2 के इक्वल। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अ थिन वायर ऑफ लेंथ l एंड यूनिफॉर्म डेंसिटी, यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी रो इज बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप विद सेंटर एट O। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लूप अबाउट द एक्सिस x डैश इज। तो ये मुझे वायर से मैंने ये एक वो बनाया, ठीक है, ये वायर के मैंने रिंग टाइप बनाया सर्कुलर लूप। ठीक है, इसका सेंटर मुझे O दे रखा है और मुझे x डैश के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो किसी, जैसे ये मेरा सर्कुलर लूप है, ठीक है, ये मेरा सर्कुलर लूप है, तो इसके सेंटर से जो एक्सिस परपेंडिकुलर इसके सेंटर की होती है उसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है परपेंडिकुलर वो कितना होता है, m/r²। ठीक है, तो अगर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करूं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करता हूं, तो जो इसका, अगर इसके डायमीटर के अलोंग, अगर इसके डायमीटर्स को मैं दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में बांट दूं, तो मुझे पता है जो मेरा mz होता है वो मेरा क्या mx प्लस my होता है। ठीक है, ये अगर मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है, और क्योंकि इसमें सिमेट्री है तो mx my दोनों बराबर होंगे, तो जो मेरा mx आएगा या मेरा my आएगा वो कितना आएगा, मेरा mz/2, मतलब हाफ m/r²। ठीक है, तो मुझे इसके अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, इसके अलोंग मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर m है, ठीक है, mx, तो यहाँ के अलोंग जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसमें मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ। जो x डैश होगा उसमें मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो कितना आएगा मेरा, जो x डैश आएगा वो कितना आएगा, mx प्लस m, ये r का स्क्वायर, ये जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो कितना है r, तो m/r²। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 3/2 m/r²। तो मुझे ये निकालना है। ठीक है, अब इसके लिए मुझे क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। अगर मेरी जो वायर की लेंथ है वो l है और उसकी मुझे लीनियर मास डेंसिटी रो दे रखी है, ठीक है, तो इससे मेरा मास कितना आ जाएगा, मास मेरा आ जाएगा रो इनटू इसकी पूरी लेंथ, इसकी पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2πr। और अब मुझे r भी नहीं पता तो मैं r कैसे निकालूंगा, जो मेरा 2πr है वो मेरा किसके बराबर है, l के। तो यहाँ से मेरा r कितना आ जाता है, r मेरा आ जाता है l/2π। ठीक है, और इसे मैं यहाँ पे l से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो जो मेरा मास आ जाता है, मास कितना आता है, रो l। तो बस अब मुझे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ से जो मेरा x डैश आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3/2। मास कितना है मेरा, मास है मेरा रो l। ठीक है, और रेडियस कितना है मेरा, l/2π, उसका स्क्वायर l²/4π²। तो ये मेरा कितना आ जाता है, 3/8 रो l³/π²। तो ये मेरा इसका फाइनल आंसर हो जाता है। थैंक यू सो मच। तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है स्क्वायर प्लेट का अबाउट एन एक्सिस ए बी। तो ए बी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई है, ठीक है, दैट पासेस थ्रू इट्स सेंटर एंड पैरेलल टू इट्स ऑफ इट्स साइड। ठीक है, सी डी इज अ लाइन इन द प्लेन ऑफ द प्लेट दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द प्लेट एंड मेक्स एंगल थीटा विद ए बी। तो ये सी डी लाइन है जो कि ए बी से एंगल थीटा बना रही है ना। द मोमेंट ऑफ, और ये सेंटर से पास हो रही है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the plate about the axis CD is then equal to। तो अब मेरे को CD के अलॉन्ग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो देखें, I CD इक्वल्स I C डैश D डैश। ये कैसे कह सकता हूँ मैं, सिमेट्री है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन अगर इस एंगल इससे थीटा बना रही है तो इससे ये थीटा बनाएगा, है ना।
तो यानी कि आप देख सकते हैं जो ए बी के अलोंग हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई ए बी, वो आई ए डैश बी डैश के अलोंग जो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो अगर ये इससे एंगल थीटा बना रहा है तो देखिए सिमेट्री ही तो है ये। तो सी डैश डी डैश के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो सी डी के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा, है ना। और दूसरी जो मैं लगा सकता हूँ, देखिए ये परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। तो यहाँ से जो इक्वेशन आ गई मेरी परपेंडिकुलर एक्सिस आई सी डी प्लस आई सी डैश डी डैश इक्वल्स आई ऑफ ए बी, टू टाइम्स आई ऑफ ए बी के इक्वल आ गया, है ना। तो यहाँ से जो आई ऑफ ए बी की वैल्यू है वो मेरे को गिवन है आई, तो और उसकी मेरे को निकालनी थी आई ऑफ सी डी, उसको मैं बोल देता हूँ एक्स, 2x, क्योंकि ये भी x के इक्वल है। तो x जो आया वो मेरा i के इक्वल आया, यानी कि i पासिंग टू सी डी इज इक्वल टू i के इक्वल। तो इन दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सेम है, ठीक है। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है ABCD जिसका थिकनेस यूनिफॉर्म है। आप देख सकते हैं ये ABCD जो है एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है कि इसके सेंटर से, सेंटर ऑफ मास जो कि O है, उससे एक एक्सिस पास हो रहा है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्लेट है, ठीक है। तो उसके अबाउट जो प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा इन टर्म्स ऑफ, ये एक्सिस 1 है, ये एक्सिस 2 है, एक्सिस 3 है, एक्सिस 4 है, ठीक है। तो हमें दिया गया है कि I1 जो है एक्सिस 1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है स्क्वायर प्लेट का, और I2 जो है एक्सिस 2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I3 एक्सिस 3 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और I4 जो है एक्सिस 4 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो इन सब के टर्म्स में IO मतलब O से एक ऐसा एक्सिस जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्लेट है, ठीक है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है इन सब के टर्म्स में, I1 I2 I3 I4 के टर्म्स में, ठीक है। तो हम एक चीज जानते हैं, स्क्वायर प्लेट का अगर हम देखें, स्क्वायर प्लेट से कोई भी एक्सिस, चाहे ये एक्सिस हो, चाहे ये एक्सिस हो, चाहे ऐसा एक्सिस हो, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये नहीं बल्कि इस ऐसा एक्सिस हो, ठीक है, ऐसा, जस्ट अ मिनट सॉरी, ऐसा कुछ एक्सिस हो कि जो भी सेंटर से पास हो रहा होगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, ठीक है। इसको हम A बोल दें, ये B बोल दें, ये C बोल दें, ये D बोल दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, IA इक्वल्स टू IB इक्वल्स टू IC इक्वल्स टू ID हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेट की खासियत होती है कि यहाँ सभी जो भी सेंटर से जो भी एक्सिस ये सब पास हो रहे हैं इन द प्लेन ऑफ प्लेट, ये सब के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बराबर होगा, यानी I1 इक्वल्स टू हो जाएगा I2 इक्वल्स टू I3 इक्वल्स टू I4, ये स्क्वायर प्लेट के साथ होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि हम यहाँ से अगर देखें तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी जनरल बॉडी के लिए कि ये अगर x है, ये y है, और ये दोनों सेंटर से पास होते हैं, और दोनों जो है प्लेन ऑफ पेपर पे ये दोनों एक्सिस हैं, और एक एक्सिस ऐसा है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है और इस सेंटर से पास होता है, उसको अगर हम O बोल दें तो IO इक्वल्स टू हो जाता है IX प्लस IY, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा, ये दोनों जो है I2 प्लस I4 इक्वल्स टू IO हो जाएगा। इसी तरह I1 प्लस I3 ये भी हो जाएगा IO, ठीक है। I1 प्लस I1 और I2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो I1 और I4 बराबर हैं, तो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं I4 प्लस I2, जो कि हमारा पहले ही आंसर में, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर नहीं हो जाएगा, ये टू टाइम्स IO हो जाएगा एक्चुअली। तो हमारा आंसर कौन कौन सा है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला। तो हमारा किस ऑप्शन में है, ये सेकंड ऑप्शन में। तो आंसर हो गया ऑप्शन 2, ठीक है। तो 4 सॉलिड स्फीयर्स दे रखे हैं मेरे को,
जिसमें हर किसी की डायमीटर मेरे को दे रही है √5, ठीक है। रेडियस कितनी जाएगी √5/2, सारे 4 सॉलिड स्फीयर जिनकी रेडियस √5/2 है, मास उनका 0.5 kg है। दे आर प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द विद देयर सेंटर्स एट द कॉर्नर। तो ये स्फीयर्स कुछ इस तरीके से रखें कि इनका जो सेंटर है स्फीयर्स का वो एक स्क्वायर बना दे, ठीक है, विद अ साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर है। तो मेरे को एक डायगोनल यानी कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, देखिए इस वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं लिखूं, देखिए 4 है ना, इसको मैं ए बोल देता हूँ, बी बोल देता हूँ, सी बोल देता हूँ, डी बोल देता हूँ। जो मेरा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा आई ड्यू टू ए प्लस आई ड्यू टू बी प्लस आई ड्यू टू सी प्लस आई ड्यू टू डी, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू ए क्या है, चलो पहले बी देख लेते हैं। बी और डी का तो इजी है, बी और डी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 2/5 mr², क्योंकि ये एक सेंटर से पास होने वाला लाइन है तो है सिंपल। और डी का भी यही हो जाएगा, यानी कि 2/5 mr²। अब आते हैं ए और सी का। देखिए ए का क्या हो जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है इसका 2/5 mr², यानी कि 2/5 mr² प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये क्या है, a/√2 है, ये है ना। ये देखिए ये a है, ये a/2 है और ये राइट एंगल। अगर मैं ये सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी a/√2। तो ma²/2। ऐसे ही आई ऑफ बी आ गया आपका, आई ऑफ सी भी सेम रहेगा, ठीक है। आई ऑफ सी क्या बन जाएगा 2/5 mr² प्लस ma²/2, यानी कि ये बन गया आपका 4 × 2/5 mr² प्लस ma²। ये आपका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया। अब इनकी वैल्यूज अगर मैं पुट कर दूं, m की, r की और a की, तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी कुछ 9 × 10⁻⁻4 kg मीटर। तो n क्या आ गया यहाँ से 9। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डाउट नोट। क्वेश्चन दिया है यहाँ, ए सिमेट्रिकल लैमिना ऑफ ए मास कैपिटल M कंसिस्ट ऑफ ए स्क्वायर शेप विद ए सेमी सर्कुलर सेक्शन ओवर ईच ऑफ द एज ऑफ द स्क्वायर एस इन फिगर। ओके, तो यहाँ पे देखो एक सिमेट्रिक लैमिना है जिसका मास कैपिटल M है और वो कंसिस्ट कर रहा है स्क्वायर शेप में, जैसा हम ये देख रहे हैं फिगर में। ओके, इसका लेंथ जो स्क्वायर बना रहा है अंदर, उसका लेंथ कितना दिया है 2a। ओके, तो द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2a, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है लैमिना का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ओ पे है। ओके, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज 1.6 ma², मतलब कि उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है अलोंग द अबाउट द एक्सिस सेंटर ऑफ मास के कितना दे रखा है 1.6 ma²। ओके, the moment of inertia of the lamina about the tangent AB in the plane of the lamina। ओके, तो यहाँ में AB के along बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि टेंजेंट है मेरा कितना होगा प्लेन ऑफ द लैमिना का। ओके, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले हमें पता है कि परपेंडिकुलर एक्सिस दे रखी है यहाँ पे। ओके, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, तो पहले देखो, पहले यहाँ पे जो हमारा क्या है कि ये एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं मैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये हो जाएगा इसके अलोंग, ये एक्स एक्सिस है। ओके, और ये कितना है, ये इसका वाई एक्सिस है। ओके, तो ये वाई वाई डैश हो गया मेरा। ओके, ये वाई और ये वाई डैश, और ये हो गया यहाँ पे एक्स डैश, और ये क्या हो गया एक्स। ओके, तो यहाँ देखो ये सेंटर ऑफ मास हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें क्या दिया था, तो यहाँ पे देखो मैं लगा सकता हूँ परपेंडिकुलर थ्योरम पहले। तो देखो पहले परपेंडिकुलर थ्योरम होता क्या है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, इफ एक्स आई एक्स मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द आई एक्सिस एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द वाई एक्सिस आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके, देखो एक्स वाई जेड तीनों क्या है, तीनों एक्सिस हैं, एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है। ओके, तो यहाँ पे दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई एक्सिस
मतलब कि अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी बॉडी का या लैमिना का, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा थर्ड वाला, मतलब कि थर्ड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो कि परपेंडिकुलर है एक्सिस मेरी जेड, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा इन जो दोनों एक्सिस बची मेरी उसके सम के बराबर। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर थ्योरम से, परपेंडिकुलर थ्योरम, ओके, उसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से जनरली आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस का आई वाई। ओके ओके, तो ऐसे, तो ये क्या हो गया मेरा, देखो ये हो गई मेरी क्या, परपेंडिकुलर थ्योरम। ओके ओके, तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। उससे हमें पता है कि आई एक्स प्लस आई वाई किसके इक्वल है, आई जेड के। ओके, तो सिमिलरली अब आते हैं अपने क्वेश्चन की साइड। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि लेट, मान लेते हैं इसका जो जेड और जेड प्राइम क्या होगा, इसके अगर 3D में देखें तो जेड और जेड प्राइम क्या होगा, इसका तीसरी एक्सिस होगी लैमिना की, जो पास हो रही होगी कहाँ से, इसके सेंटर से। ओके, तो यहाँ पे देखो आई जेड जेड हमें दे रखा है क्वेश्चन में, आई जेड जेड प्राइम हमें दे रखा था कितना, 1.6 ma²। ओके, ये दे रखा है। तो अब देखो यहाँ पे हम बाय द थ्योरम द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं कि जो आई जेड जेड प्राइम है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे वो है आई एक्स एक्स प्राइम प्लस आई वाई वाई प्राइम। ओके, इसके इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है कि सम ऑफ द टू एक्सिस, ओके, जो थर्ड के इक्वल हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे देखो बाय द सिमेट्री से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि बाय सिमेट्री से हम देखो क्या लिख सकते हैं कि जो मेरा आई एक्स एक्स प्राइम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई वाई वाई प्राइम के। ओके, तो यहाँ से देखो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया मेरा आई जेड जेड प्राइम, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ आई एक्स एक्स प्राइम प्लस आई वाई की जगह भी क्या लिख सकता हूँ, आई एक्स एक्स प्राइम। ओके, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा आई जेड जेड प्राइम इज इक्वल टू, ये 2 टाइम्स हो जाएगा आई एक्स एक्स प्राइम के। ओके, तो यहाँ पे देखो मुझे आई जेड जेड प्राइम वाला दे रखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, 1.6 ma²। ओके, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आई एक्स एक्स प्राइम। ओके, तो यहाँ से देखो एक्स एक्सिस के अलोंग मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा यहाँ से आई एक्स एक्स प्राइम। ओके, तो वो कितना आ जाएगा, देखो आई एक्स एक्स प्राइम इज इक्वल टू, वो आ जाएगा देखो मेरा 1.6 डिवाइडेड बाई 2। ओके, 1.6 डिवाइडेड बाई 2 ma²। ओके, तो यहाँ से देखो आई एक्स एक्स प्राइम मेरा कितना आ गया, वो आ गया, अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो यह आ जाएगा 0.8 ma²। ओके, तो देखो मुझे थर्ड जो एक्सिस है मेरी, मतलब कि उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया। ओके, अब क्या करूंगा, क्योंकि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, ये जो टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है ए बी। ओके, तो यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस ए बी, तो यहाँ से सेंटर पे पता चल गया मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस स्क्वायर का क्या पता है, मास पता है। ओके, तो इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया मुझे। ओके, अब देखो वाई अप्लाइंग द थ्योरम ऑफ द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या हमें क्या पता है कि सेंटर पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस उसके जो पैरेलल एक्सिस जा रही है उसके जो डिस्टेंस है, उसका जो एक्सिस है मतलब कि पैरेलल एक्सिस, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका मास इनटू वो डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द ए बी जो टेंजेंट है आई ए बी, वो कितना आ जाएगा, अब वो आ जाएगा आई एक्स एक्स प्राइम, जो कि सेंटर पे पता चल गया मुझे आई एक्स एक्स प्राइम प्लस मास m इंटू वो डिस्टेंस d²। ओके, तो वो d कितना दिया है, 2 दिया था, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको, देखो
आई एक्स एक्स प्राइम प्लस एम। ओके, और वो डिस्टेंस कितना दिया था 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2a का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा आई एक्स एक्स प्राइम प्लस ये कितना हो जाएगा 4m a स्क्वायर। ओके, तो ये कितना है 0.8 m a स्क्वायर। ओके, और ये कितना है 4m a स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया टेंजेंट AV के अलोंग, वो कितना आ गया 4.8 m a स्क्वायर। ओके, तो यही हमें बताना था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।